Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. Today, students, we are going to discuss our exercise 2.4 from question number 5th, then question number 6th, and then question number 7. So, students, we are going to start discussion from question number 5th of our exercise 2.4. And first four questions are discussed in previous video. So, students, if you are having doubt in question 5, firstly pause this video, read out that question, and then we will start our video. So students, what is given in this question? That there are two persons. First one is your Subbu, and then after Subbu's mother. And there is relation is given between their present age. Present age of the Subbu's mother is 6 times of Subbu's present age. 6 times means friend. Suppose Subbu is of 5 years. Subbu 5 साल का है तो mother से 6 times होगी. That is 5 into 6 30 years. And suppose if Subbu is of 10 years तो Subbu की mother क्या हो जाएगी age? That is 10 into 6 60 years. But we don't know exactly what is the age of Subbu. So I will take the Subbu's present age be x. So let the Subbu's present age be x. We have taken let Subbu's present age. Let Subbu's present age be x. So can you tell me then Subbu's mother's present age what it will become? Then Subbu's mother's प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सुबह की मदर की प्रेजेंट एज दैट इज 6 टाइम्स मल्टीप्लाइंग इट बाय 6 दैट इज 6x. व्हाई आई मेंशनड दैट दिस बिकॉज़ Subbu's mother is 6 times of the age of Subbu. If we have considered the Subbu's age be x years, if we have considered the Subbu's age be x years, then its mother age will become 6x years. Now this is the first statement of our question. Now students, 5 years from now, आज से 5 साल बाद, 5 years from now, आज से 5 साल बाद. What it happened after 5 years? Can you tell me the Subbu's age? अब देखो सुब्बू की एज अभी x है, 5 साल बाद क्या होगी भाई? वो 5 साल बड़ा हो जाएगा. दैट मीन्स इसके अंदर 5 और क्या हो जाएगा? ऐड. सो ही विल टोल्ड दैट सुब्बूज एज क्या हो जाएगी आपकी? सुब्बूज एज विल बिकम दैट इज x plus 5 years. Now according to question what is given? According to question what is given? Here it is given that Subbu's age, it is given that Subbu's age after 5 years कि जो सुब्बू की मदर जो सुब्बू की एज होगी, सुब्बू की जो एज होगी 5 साल बाद, that is given as 1/3 of, that is given as 1/3 of Subbu's mother's present age. Subbu's mother's present age. अब क्वेश्चन में ये बोल दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कंडीशन इज दैट सुब्बूज एज आफ्टर 5 इयर्स, सुब्बू की उम्र क्या है 5 साल बाद, दैट इज x plus 5. और ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 1/3. 1/3 किसकी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1/3 ऑफ द प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज क्या है सुब्बू की मदर की? 6x. सो 3 1 जा 3 2 जा, सो इट विल बिकम x plus 5 is equal to 2x. ये आपकी कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट. यहां से I think this equation will become simplest form. अब आप x को ट्रांसपोज करोगे, 5 is equal to 2x minus x, और what is the value of x here? That is 5. That is 5. अब x क्या थी? सुब्बू की प्रेजेंट एज, सुब्बू's present age x, that means Subbu's present age will become 5 years, and Subbu's mother's present age that is 6 into 5, that means that is 30 years. तो आपको इन दोनों की एज बतानी स्टूडेंट्स. आई थिंक यू कैन टोल्ड. सो आई विल रिपीट माय क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज सेड दैट Subbu's mother present age that is 6 times of Subbu's present age. Now I have considered Subbu's present age be x years, then Subbu's mother age will become 6x years. Now it is given that Subbu's age after 5 years.
वो बोला है कि जो सुब्बू की उम्र होगी 5 से 5 साल बाद, इससे 5 साल बाद x + 5, ये किसका 1/3 हो जाएगा? दैट इज 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज. सो सुब्बूज एज आफ्टर 5 years, that is 1/3 of the Subbu's mother's present age. Then after putting the value and solving it, we will found the value of x be 5. Here x is the Subbu's present age. So Subbu's present age is 5 years and Subbu's mother's present age is 6 into x, that is 6 into 5, that is your 30 years. So students, this is our question number 5. Now students, we are going to try our question number 6. So firstly read out question 6, then we will discuss this question in this video. Now students, in question number 6 it is given that there is a rectangular plot. Rectangular plots means it is having some length and some breadth, and the ratio of length and breadth is given as 11:4. The ratio of length and breadth is given as 11:4. अब स्टूडेंट अगर आप रेशियो फाइंड आउट करोगे तो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा जो आपने कैंसिल आउट किया होगा रेशियो में. सो आई विल टेक द कॉमन फैक्टर बी x. सो लेट द कॉमन फैक्टर बी x. लेट द कॉमन फैक्टर बी x. देन कैन यू टेल मी द लेंथ. अब लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 11x. देन द लेंथ विल बिकम 11x. देन द लेंथ विल बिकम 11x and breadth will become 4x. तो ये आगे सुना आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ. अब उसने क्या बोला कि फेंसिंग की है. नाउ कैन यू टोल्ड मी हाउ वी विल फेंस ए रेक्टेंगुलर प्लॉट. हम फेंसिंग कैसे करेंगे? हम फेंसिंग करेंगे स्टूडेंट उस प्लॉट की बाउंड्री के अलोंग. फेंसिंग कैसे होगी? उस प्लॉट की बाउंड्री के अलोंग. तो बाउंड्री मींस perimeter. So students, can you tell me perimeter from here? So now perimeter of plot will become perimeter of plot, that will become twice of length plus breadth. So perimeter of plot twice of length 11x plus 4x, that is twice of 15x, that is equal to 30x मीटर. ये आ जाएगा आपका प्लॉट का पेरीमीटर. ये क्या आ जाएगा आपका प्लॉट का पेरीमीटर. अब ये बोला गया है कि उस प्लॉट की फेंसिंग करने में 1 मीटर का खर्चा क्या आएगा? दैट इज ₹100. अब जो प्लॉट है उसकी फेंसिंग करने में 1 मीटर में कितना खर्चा आएगा? दैट इज ₹100. सो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर फेंसिंग? 3x मीटर. हम 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. भाई सिंपल सा लॉजिक है. 1 मीटर का खर्चा 100 है. 5 मीटर का क्या हो जाएगा? 5 into 100. 15 मीटर का क्या होगा फेंसिंग करने का? 15 into 100. सो कैन यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30x मीटर? दैट मींस 30x into 100. सो द टोटल cost of fencing. So total cost of fencing, that is 30x into 100, that will become 3000x. अब ये तो टोटल कॉस्ट है आपकी वेरिएबल के फॉर्म में, बट एग्जामिनर ये बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या है? दैट इज योर 75,000. आपने तो वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लिया कि सर टोटल कॉस्ट ये है, बट मैं बोलूं कि ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू 75,000 बिकॉज इट इज गिवन दैट द टोटल कॉस्ट इज 75,000. सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देन वी कैन से दैट 3000x जो आपकी एक कॉस्ट आई है किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू 75,000. सो फ्रॉम हियर x विल बिकम 75,000 ओवर 3000. ये 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर दोगे and 3 1 जा और 3 25 जा. So what is the value of x from here? That is 25. Now what is your length? 11x. That means 11 into 25, that is 275 I think. And breadth, that will become 4 into 25, that is your 100 meter. And this you have to find that what the dimension of plots. Dimension means you have to find length and breadth, that we already find out. So students, I will repeat this question again, that there are there is a rectangular plot whose length and breadth are in the ratio 11:4. So I have taken the length be 11x, breadth be 4x. अब इस प्लॉट की उसने क्या कर दी? फेंसिंग की. दैट इज डन अकॉर्डिंग अलोंग द पैरामीटर.
So according to these length and breadth, I have found the parameter that will become 30x meter. Now in book it is given that the fencing of 1 meter is rupee 100. Then fencing of 30x meter will become, that is 30x into 100. अब ये total cost आ गई. This is your total cost. अब एग्जामिनर ये बोला कि टोटल कॉस्ट आपकी क्या है 75,000. That means this must be equal to 75,000, and from this equation we can find the value of x, and putting the value of x in your length and breadth we will find the required dimensions. Now students, we are going to discuss our question number 7. So students, please before starting the video, question 7 is somewhat complicated question. So firstly read out the question 2 times and then start the video from here. So students, firstly pause the video and read out your question 2 times, and after reading out the question you can start this video from here. Now students, Asan is taking 2 types of cloth material, one for shirt and one for trouser, and he is making the uniform. Students, as we are obvious from this fact that Asan should be 2 types of cloth material, क्योंकि 2 तरह का होगा, one for your shirt and one for your trouser. Is it clear? So for shirt he will purchase, for each uniform he will purchase 3 meter shirt material and 2 meters trouser material. शर्ट मटेरियल कितना परचेज किया for one uniform. उसने शर्ट का मटेरियल कितना पे किया स्टूडेंट्स, दैट इज 3 मीटर, एंड ट्राउजर मटेरियल दैट इज 2 मीटर. कि एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए वो शर्ट मटेरियल कितना परचेज करेगा 3 मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल इज 2 मीटर. अब ये जो मटेरियल होगा वन यूनिफॉर्म के लिए, बट हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली जो हसन है वो कितनी यूनिफॉर्म बनाएगा. सो आई विल टेक, ही इज मेकिंग एक्स यूनिफॉर्म. सो लेट अस टेक हसन विल मेक एक्स यूनिफॉर्म. हसन कितनी यूनिफॉर्म बनाएगा फ्रेंड्स सेल करने के लिए, एक्स यूनिफॉर्म. अब एक यूनिफॉर्म के लिए ट्राउजर का मटेरियल था 2, तो एक्स यूनिफॉर्म्स के लिए ट्राउजर मटेरियल क्या हो जाएगा, दैट इज 2x मीटर. और शर्ट का मटेरियल क्या हो जाएगा, दैट इज 3x मीटर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन जो है वो टोटल ट्राउजर कितना क्लॉथ लेगा, दैट इज 2x मीटर, एंड टोटल शर्ट क्लॉथ विल बी 3x मीटर. एनी डाउट स्टूडेंट्स? आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन जो आपका 2 तरह कपड़ा लेके आ रहा है यूनिफॉर्म के लिए, वी आर ऑब्वियस विद दिस फैक्ट, वन फॉर ट्राउजर वन फॉर शर्ट. अब एक यूनिफॉर्म के लिए मान लेते हैं कि वो ट्राउजर के लिए 2 मीटर कपड़ा लेके आएगा एक यूनिफॉर्म में, और शर्ट उसके क्या लगेगी 3 मीटर कपड़ा लगेगा. देन अब हमें नहीं पता कि हसन कितनी यूनिफॉर्म बना रहा है, हम मान लेते हैं ही विल मेक द एक्स यूनिफॉर्म्स. अब एक्स यूनिफॉर्म में 1 से एक्स पे जाएंगे तो ट्राउजर क्या हो जाएगा 2 into x मीटर. ये हमारी हो जाएगी रिक्वायरमेंट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, दिस विल द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, एंड 3x मीटर दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर योर shirt material. So students, shirt material required. So here I will write shirt material required. That is 3x meter. Now, अब उसे अगर मटेरियल चाहिए तो स्टूडेंट पहले तो देखो वो उस मटेरियल को खरीदेगा और फिर हमें सेल करेगा. तो उसको किसी एक कॉस्ट पे तो खरीदेगा, एंड देन आफ्टर किसी एक कॉस्ट पे आपको सेल करेगा, उसके बीच में उसको लॉस या प्रॉफिट होगा. सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल, दैट इज गिवन एज, व्हाट इट इज गिवन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल, दैट इज ₹50. आपको 1 मीटर शर्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या गिवन है, ₹50. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी कॉस्ट प्राइस ऑफ 3x शर्ट मटेरियल? 3x मीटर शर्ट मटेरियल की कॉस्ट प्राइस बता सकता है मुझे क्या रहेगी? 3x मीटर शर्ट मटेरियल, दैट इज ₹50 into 3x, दैट मीन्स ₹150x.
नाउ स्टूडेंट्स, अब उसने शर्ट मटेरियल जो खरीदा है ना उसको वो बेच रहा है और क्या प्रॉफिट है, ही सेल्स इट एज 12% प्रॉफिट। उसने तो शर्ट का मटेरियल ना कितने प्रॉफिट पे सेल किया, क्या प्रॉफिट परसेंटेज है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, दैट इज 12%। प्रॉफिट परसेंटेज क्या स्टूडेंट आपकी 12%। तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा यहां से, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 3x मीटर शर्ट मटेरियल वो क्या रहने वाली है आपकी, दैट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला हमने किया है ना क्लास 7th में भी। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, और अगर यहाँ लॉस होता तो लॉस परसेंटेज माइनस हो जाता। तो ये क्या होगा हमारा 100 प्लस, अब ये प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, क्या है 12 ओवर 100 इंटू 150। इसको फर्दर सोल्व करोगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इट विल बिकम योर, it will become 112 over 100 into 150, that is 53 ja and 52 ja, 2 1 and 2 5 ja 10 56, so it will become 3 6 ja 18 168। okay, यहाँ ये 150x है फ्रेंड, इट विल x, तो ये x होगा और ये क्या हो जाएगा आपका 168x रुपी 168x। तो यहां से आपका सेलिंग प्राइस क्या आएगा फ्रेंड, सेलिंग प्राइस ऑफ 3x शर्ट मटेरियल दैट इज रुपी 168x। ये x साथ में क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, x भी उसके साथ में रहेगा। Now students, what is given, that Hassan is a cloth maker, he is making uniform। अस्टूडेंट वो यूनिफॉर्म बना रहा है ना, पर यूनिफॉर्म उसकी शर्ट मटेरियल क्या है 3 मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल क्या है स्टूडेंट, दैट इज 2 मीटर। अब हसन ने क्या किया स्टूडेंट, एक यूनिफॉर्म बेचने के लिए उसे कितना मटेरियल चाहिए, 2 मीटर ट्राउजर एंड 3 मीटर शर्ट। अब हमें नहीं पता कि हसन टोटल यूनिफॉर्म कितने बनाएगा, आई विल टेक इट एक्स यूनिफॉर्म। अब एक यूनिफॉर्म पे उसको 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल रिक्वायरमेंट है, तो आपकी एक्स यूनिफॉर्म पे ट्राउजर मटेरियल क्या हो जाएगा 2x मीटर, और यहां से आपका शर्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, दैट इज 3x मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, पहले हम शर्ट का देख रहे हैं। अब शर्ट के लिए क्या बोला है, शर्ट का मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या होगी आपकी 3x मीटर। अब बुक में दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर शर्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कि वो खरीद रहा है 1 मीटर शर्ट मटेरियल 50 रुपए का खरीद रहा है। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर 3x शर्ट मटेरियल, आप 50 को 3x से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 150x रुपी। अब उसने ये तो खरीद लिया, बट जिस रेट पे खरीदा है क्या उसी रेट पे हमें दे देगा क्या हसन, नहीं, वो ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए कर रहा है। सो ही विल मेक्स 12% प्रॉफिट ऑन द शर्ट मटेरियल। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, दैट इज 100 प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे 12 डिवाइड बाय 100 इनटू 150x। इसको आप सोल्व करोगे यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 3x शर्ट मटेरियल इज 160x। ऐसे हम ट्राउजर का निकालेंगे, एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल, दैट इज रुपी 90। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल, कॉस्ट प्राइस here, cost price of 1 meter trouser material, 1 meter trouser material, that is rupee 90। अब यहां दिया स्टैंड कि कॉस्ट प्राइस 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल क्या रुपी 90, बट टोटल रिक्वायरमेंट क्या हमारी, कितना ट्राउजर मटेरियल चाहिए 2x मीटर, यानी कि 2x चाहिए। सो कैन यू टेल मी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2x ट्राउजर मटेरियल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल क्या हो जाएगा, व्हाट यू विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 90 बाय 2x, दैट विल बिकम
₹90 इंटू 2 180 और ये हो जाएगा आपका x। अब ट्राउजर में भी हसन ये तो है नहीं जिस प्राइस पे ट्राउजर खरीदेगा आपको उसी प्राइस पे बेच देगा। ट्राउजर पे कितना प्रॉफिट ले रहा है? ही विल मेक द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल में प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट? दैट इज ऑफ 10%। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ट्राउजर मटेरियल 10%। स्टूडेंट ध्यान से देखना, प्रॉफिट अलग अलग है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज दैट ऑफ शर्ट एंड सेकंड प्रॉफिट परसेंटेज दैट ऑफ ट्राउजर। सो ट्राउजर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 10%। सो सेलिंग प्राइस, सो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी सेलिंग प्राइस ऑफ 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल ये क्या हो जाएगा? दैट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेम फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। नाउ दैट इज इक्वल टू 100 प्लस, अब यहां प्लस क्या होगा? प्रॉफिट क्या है? 10 यहां पर, तो 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है? दैट इज योर 180x। नाउ फर्दर सोल्विंग इट विल बिकम 110 ओवर 100 इंटू 180x ओवर ये 100 है यहां पर। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड 0 यहाँ 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा आपको? ₹198। ये क्या हो गया? दिस इज योर टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल। ये ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस हो गया 198 और शर्ट मटेरियल आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट सेलिंग प्राइस दैट इज 168। अब यहां तक देखो स्टूडेंट, मैं दो चीजें हाईलाइट कर रहा हूं। फर्स्ट वन, सेलिंग प्राइस है आपका ये शर्ट का 168 और यहां से देखो ट्राउजर का क्या है आपका सेलिंग प्राइस? दैट इज ₹198x। ₹198x वो आपका किसका आ गया? दैट इज ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अब आप यूनिफॉर्म लेने गए सपोज मार्केट में, तो ऐसे करेगा क्या? सर मेरे पास तो पैंट है, शर्ट आप वहां से ले लीजिए। ही विल गिव द कंबाइंड यूनिफॉर्म। कंबाइंड यूनिफॉर्म देगा तो जो सेलिंग प्राइस रहेगा, जो सेल रहेगी, टोटल सेल, वो क्या रहेगी? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ योर ट्राउजर। सो व्हाट विल बी द टोटल सेल? टोटल सेल क्या कहां से आ जाएगी? स्टूडेंट यहां तक देख लीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आया, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। टोटल सेल क्या हो जाएगी आपकी? व्हाट विल बी द टोटल सेल? टोटल सेल को क्या हो जाएगी आपकी? दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। जो टोटल सेल होगी स्टूडेंट, टोटल सेल आप कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल सेल वो कैसे फाइंड आउट करोगे? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, टोटल क्या सेलिंग प्राइस है? ₹168 प्लस जो टोटल सेलिंग प्राइस है ट्राउजर का, दैट इज ₹198। दैट विल बिकम ₹366 नहीं, रुको स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस शर्ट का क्या है? 168x है, सॉरी, और ट्राउजर का क्या है? 190x। तो ये हो जाएगा ₹366x। x तो मैं नहीं पता ना क्या है यहां पर। तो स्टूडेंट यहां तक देखिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है देन यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो बिहाइंड। मैं रिपीट कर देता हूं यहां तक अगेन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड। क्या था हमारे पास? टोटल डिमांड थी x यूनिफॉर्म की। अब वहां से आपका शर्ट का मटेरियल क्या आया था? शर्ट का मटेरियल आया था, ये शर्ट का मटेरियल आया था। शर्ट का मटेरियल क्या आ गया था? टोटल 3x और ट्राउजर का मटेरियल क्या आ गया था? 2x। अब यहां से क्या हुआ हमारा कि शर्ट के लिए आपकी 1 मीटर की कॉस्ट प्राइस थी 50, 3x मीटर की क्या हो जाएगी? 3x को 50 से मल्टीप्लाई किया, ये कॉस्ट प्राइस होगी आपकी टोटल शर्ट की, दैट इज ₹150x। ये हो गया हमारी कॉस्ट प्राइस।
अब हसन ये तो है नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमाएगा, रे दुकानदारी कर रहा है, प्रॉफिट होगा उसको, दैट इज ऑफ 12%। इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला पुट करके सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ये आपका टोटल शर्ट्स का। इन द सेम वे ट्राउजर की 1 मीटर की क्या है कॉस्ट प्राइस 90, 2x के लिए क्या हो जाएगी 180x, प्रॉफिट उसने ट्राउजर पे क्या कमाया 10%, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग उसका जो ट्राउजर की जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा 190x। नाउ स्टूडेंट अब टोटल सेल क्या होगी, अब ये तो है नहीं वो पैंट शर्ट अलग अलग बेचेगा, यूनिफॉर्म एक साथ बेचेगा, तो टोटल सेल क्या हो जाएगी कंप्लीट यूनिफॉर्म्स की, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, टोटल जो सेलिंग प्राइस आएगा दैट इज 168x plus 198x, that is rupees 366x. And now here in the question it is given that the total sale is 36,600। तो यहां से हम देख लेते हैं स्टूडेंट, नाउ ये हम शर्ट का टोटल रिक्वायरमेंट और ट्राउजर का छोड़ देते हैं, यहां से ये रेज कर देता हूं, आई थिंक वी विल नॉट रिक्वायर दिस। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टोटल सेल आई है आपकी 366x वो किसके को लेने वाली है, दैट इज इक्वल टू 36,600। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, इट विल बिकम 100। x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट आपके यहां से 100। अब आप x की वैल्यू पुट करो, अब टोटल शर्ट मटेरियल क्या यूज हुआ 3x मीटर, ये देखो टोटल शर्ट मटेरियल कितना यूज हुआ हसन के पास, हसन ने टोटल शर्ट मटेरियल कितना यूज किया 3x मीटर, 3x से 100 पुट कर दो, 3 into 100 दैट इज 300 मीटर। इन द सेम वे ट्राउजर मटेरियल कितना यूज होगा 2x मीटर, तो 2 into 100 ट्राउजर मटेरियल आपका क्या आ जाएगा 200 मीटर। सो ट्राउजर मटेरियल कितना यूज किया हसन ने, ट्राउजर मटेरियल that is 2x, that means 2 into 100 that is your 200 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही पे, उसको टोटल ट्राउजर मटेरियल की कितनी जरूरत पड़ेगी, कितना ट्राउजर मटेरियल उसको खरीदना पड़ेगा, दैट इज ऑफ 200 मीटर। तो ट्राउजर मटेरियल टोटल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 200 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स इफ देयर इज एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, कोई भी डाउट है आपका, फिर भी एनी डाउट है, देन यू कैन वॉच द वीडियो रिस्पेक्टिव क्वेश्चन 2 times and then after if your doubt will be not sorted out then we will discuss it in our Zoom class।